Pielen jos on se ke. Ah, salam. Termos mana ha? Lem malu ada chat. Lain chat. Ai himbo nyo. Nanti jadi merok minim lagi yang data sumber betul. लो जी थुम्पा थोपा 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 थुप्पा ये बनता कैसे है थोपा? ये है बनता एक तो सूप बनता है जैसे जौ होता है हमारा मैन जौ को कूटते हैं ठीक है जी। धीरे 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 करके उसके छिलके निकालते हैं ब्रिक कराते हैं उसको फिर उसको पकाते हैं अच्छे से उसमें जैसे आपका ड्राई पनीर डालते हैं हाँ जी। इस तरह से फिर मटर डालते हैं फिर उसका सूप भी पीते हैं हम लोग बड़ा अच्छा लगता है और सत्तू के साथ गोला बना के चटनी के साथ आज ये थुपा ऐसा है इसमें दिया हुआ मैंने छिंदुक बोलते हैं छिंदुक काला मटर और ड्राई पनीर और जो पालक का एक जाति होता है वो दिया हुआ है फिर साथ में मैंने थोड़ा टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैगी और मसाले डाले जो इसमें मैगी भी होगा अच्छा, इसके अंदर मैगी भी है मैगी भी है और आपका लोकल काला मटर भी है। लोकल काला मटर भी है मटर और, पालक और लोकल जो हम सूप पीते हैं उसका दाना भी है ठीक ठीक है जी। और ये गर्म भी रहता है बहुत ज़्यादा हाँ पीने से ये मैंने इसीलिए अब सर्दियों में पीते हैं, ये गर्म होता है बहुत ना। सर्दी में गर्म रहता है और हेवी भी होता है थोड़ा वो भी कम लगता है और एकदम शरीर जब भी ठंडा होगा तो हम इसको पीते हैं ज़्यादातर सर्दी में ज़्यादा पीते हैं ठीक है जी। हमने पहले खाया था लेकिन पहले हमने लोग होममेड नहीं खाया, वो जो बाजार में मिलता है ना वो वाला खाया अच्छा है। नूडल वाला हाँ नूडल वाला। अच्छा नूडल अलग होता है वो चाइनीज डिश होता है और वैसे सेम होता है हमारे ये हाथ से फेंकते हैं वो मशीन से लेते हैं हाँ वो नूडल वाला ही खाया हमने, ये पहली बार खा रहे हैं। तो नूडल वाला जो है सेम ही प्रोसेस है नूडल वाला मशीन से लंबा 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 कराते हैं तो वो होता है मैदे का और हम बनाते हैं आटे का और लोकल सत्तू का भी बनता है ऐसे चटनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਦੇ ਉਧਰ ਜਸਪਾਦਾਰ ਚ ਨਿਊਡਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਾ। Bacel tupa boleh इसको. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Bacel tupa. ਓਕੇ। Bacel tupa boleh ना. ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਆਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਐਨਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ ਲਾਂਗੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਲੈਫਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵਧੀਆ। ਹੈਲੋ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਚੜਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹ ਬਾਈ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਯਾਰ। अभी तो स्नो बिल्कुल चली गई, हाँ जी रोड बिल्कुल साफ हो गया अभी तो ना, रोड साफ हो गए अभी मौसम भी साफ है, लगता है अभी जल्दी स्नो नहीं आएगी। पता नहीं ये कोई अब कब तक है कब तक हम तो मार्च तक हैं, 1 मार्च तक सनो कब है स्नो। नेट में तो अभी 27-28 को बता रहे हैं। अच्छा सीधा 28 फरवरी को हाँ 27-28 फरवरी को। परसेंटेज सीधा 28 तो फिर बदल जाएगा नहीं हाँ बाकी अभी जब जब पता चलेगा ना, बदलती रहती है परसेंटेज तो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਰੰਗਰਿਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਕੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਿੱਚ ਹਾਈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਲਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਆ ਇਹ, ਇੱਥੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਮੋਨੈਸਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਆਏ ਇੱਧਰੋਂ, ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਚਮ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਚਿੱਚਮ ਕਿੱਬਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕੁੰਜਮ ਪਾਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਾਸਟ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਬਰਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਟਰ ਬੀਜਣਗੇ। ਕਾਲਾ ਮਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮਟਰ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ 20 ਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਨਾ। ਲੋਕਲ ਰਾਜਮਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਮਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਪਿੰਡ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਆ ਕੀ। ਇਹ ਕੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੰਗਰਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੰਗਰਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਰੰਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਖੁਰਿਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਖੁਰਿਕ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਆ ਖੁਰਿਕ। ਖੁਰਿਕ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰਿੰਗ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਮੂਰਿੰਗ ਪਿੰਡ। ਮੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਹੈਗਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਬਸ 4-4 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਆ। ਹਾਲ, ਮੂਰਿੰਗ, ਖੁਰਿਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰੰਗਰਿਕ। ਰੰਗਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਾਜਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। Tuppa, tuppa? Tuppa nie, Lende. Okay. Schönen Namen. ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, 250-300 ਲਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਬੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਤਾਬੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੋ ਵਾਲੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਤੀ ਦਾ ਅਲੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਉੱਧਰ ਮੰਦਰ ਆ ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੋ ਦੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਤੀ ਦਾ ਅਲੋਰਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਆ ਜਾਓ, ਡੂ ਨਾਟ ਟੱਚ। ਗਦੀ ਆ ਨੋਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨੇ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਪਟ ਲਈਏ ਇਹੀ। तो यहाँ से ऐसा क्या है जो इस मोनेस्ट्री से हम अपनी
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਬਲ ਟੀ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਨੀਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਟੈਪ ਹੈ ਸਾਰਾ। ओ मान्य पद में हो, ये मंत्र बोलते हैं ना, वो भी होते हैं, काफी सारे मंत्र होते हैं। आपके जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा होते हैं? तिब्बतन में होते हैं वो? पहले तो वो पाली में था। हाँ, शुरू में तो पाली में था। उसके बाद संस्कृत में क्या बोलते हैं, 6वीं शताब्दी में संस्कृत में ट्रांसलेट हुआ, फिर 10वीं शताब्दी में वो टिबेटन में ट्रांसलेट हुआ। अभी जो बच्चे पढ़ते हैं वो तिब्बतन है ना? टिबेटन हिंदी में भी है। ये जो भी हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा दिया जाता है ना, वही किया जाता है। वो तो हर लैंग्वेज में है। तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है? चलो ये और उससे सीबक से बनती है? सिबक नहीं, ये लोकल हब से बनता है। ये इसमें एक जो है हम मार्केट से डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, लौंग। चल लौंग। बाकी 4-5 हब्स हमारे यहाँ लोकल है, तो 10,000 फीट के ऊपर ही उगता है ये, जो जिसकी जो चाय बनती है। हाँ, सीबक भी इधर का फेमस है ना? हाँ, सिबकतुन में अभी वो सिबकतुन तो मार्केट में वो धंधा बन गया ना। हाँ, अभी तो वो अमेजन से मिल रहा है, लेकिन जो इधर का रियल वाला है वो नहीं मिलेगा। वो आपको यही यहाँ स्पीति से लेके जाएंगे तो ओरिजिनल मिलेगा लगभग। हाँ, हमने पहले वहाँ से लिया था, वो गेहूँ से लिया था हमने एक बार। हाँ, वो भी वहाँ भी मिलेगा, अच्छा ही गेहूँ में मिलेगा। अच्छा मिलता है। एक पाउडर फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, और एक और नहीं, एक वो आता है छोटी छोटी जैसे कोई चीज़ होती है, फ्रूट होता है जैसे छोटा छोटा। हाँ, वो सबसे पहले डायरेक्ट निकाल के सुखाते हैं, वो बेरी होता है। हाँ, बेरी जैसे होता है। उसको ग्राइंड करके एक निकलता है उसका लिक्विड, दूसरा बन जाता है पाउडर, वो दोनों भी काम आता है। अब वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे बताते हैं ना। हाँ, वो उसमें ओमेगा 3 कुछ रहता है, और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है वो। हाँ, बहुत अच्छा है वो। तो लामा जी इधर कितने मतलब लामा जी रहते हैं मिनिस्ट्री में? यहाँ पे होंगे आज के डेट में इधर 60 से 70 लोग हैं। अभी शाम को आएंगे बच्चे धर्मशाला से वापस 50 के करीब, और जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई में आएंगे और 70-80 बच्चे। अभी हम विंटर में बच्चों को धर्मशाला भेजते हैं। हाँ, वहाँ पे सर्दी कम वहाँ होती है। सर्दी भी कम है, यहाँ पानी का दिक्कत रहता है, तो सर्दियों में उधर, समर में इधर। समर में डेली 270-80 तो रहते हैं। तो इसके जो यहाँ पे आप जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें वो क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं? हाँ, फिलोसफी पढ़ते हैं। ये मोनेस्ट्री ऐसा है कि जैसे कोई मंदिर होता है ना, आप आए, दर्शन किया, प्रसाद खाया, अपना मन्नत मांगा, फिर वापस चला गया, ऐसा नहीं। ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, जहाँ हर तरह का एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को। सबसे छोटे आएंगे बच्चे 8 साल से। 8 साल से हम लोग उनको सबसे पहले अपना हिमाचल बोर्ड का है मैट्रिक तक, ओके। और उसके बाद 3 साल अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कूल भी है, 3 साल उसमें पढ़ाते हैं। पता नहीं उस स्कूल का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। 3 साल उसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद हम 16 साल के बाद बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ाना शुरू करेंगे। जो नॉलेज जो बुद्ध जी को बुद्ध विहार में मिला था, और अब उनके बाद 700 साल बाद बुद्ध जी ने सबसे पहले ज्ञान दिया था पाली में। 700 साल तक पाली में था। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बना, तब वो संस्कृत में कन्वर्ट हुआ। जो पहले पाली भाषा में लिखा था वो नालंदा में संस्कृत में हुआ वो। संस्कृत में ट्रांसलेट किया। उसके बाद 10वीं शताब्दी में टिबेटन में वो ट्रांसलेट हुआ। और वो जो हम वो शिक्षा देते हैं जो नालंदा में आज से 2000 साल पहले नालंदा में जो शिक्षा दिया जाता है, वो यहाँ देते हैं।
तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी उसमें जो एजुकेशन दी जाती थी वो अभी आप मिनिस्ट्री में देते हैं। यहाँ हर मनुष्य यहाँ ये भी सभी है। मिनिस्ट्री में एक ही जैसा होता है? लगभग एक ही जैसा होता है। करने का थोड़ा ढंग तरीका अलग अलग रहता है, लेकिन तो पूरा पर लामा जी बनने में कितना समय लग जाता है? लामा बनने में आपको कुछ समय नहीं लगेगा। आप आइए अपना कुछ, जैसे हम बच्चे 8 साल में आएंगे तो उनको कुछ ओथ लेना होता है, उसमें रहता है 34 के करीब। आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, 34 के करीब। 34 कंडीशन बताते हैं, अब ये करना है, ये नहीं ये नहीं करना। ओथ होते हैं जो हम दीक्षा जैसे लेते हैं हाँ जी, हाँ ना अपने। उसके बाद 20 साल तक उतना ही है। 20 साल के बाद मेच्योर हो जाएगा ना, फिर होता है और ज़्यादा 260-70 के करीब ओथ होते, वो लेना होता है। तो लामा जी शादी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? शादी नहीं कर सकते अगर लामा रहते हुए। अगर आप नए लामा में आगे आप 4-5-20 साल जितने भी रह चुके हो, आपको कंफर्टेबल, आप इस लाइफ में खुश नहीं तो आप वापस कभी भी जा सकते हैं। अच्छा, एक बार आप लामा बन गए तो आप वापस जा भी सकते हैं, कभी भी फैमिली बना सकते हैं अपनी। एक दिन बन के कल वापस भी जा सकते हैं। 60-70 साल बैठ के भी वापस जा सकते हैं, अपना मर्जी। एक बार गया तो फिर दोबारा नहीं। तो आपकी जैसे आपके जो मतलब फेस है ना, जो आपका मंगोल से बहुत मिलता है सभी इधर के लोगों का। आपके बैकग्राउंड मंगोल से भी जुड़ती है या तिब्बत वगैरह इससे है? शायद तिब्बत से जुड़ते हैं। मंगोल से इतना कंपल्सरी मतलब आपको श्योर नहीं है ना? नहीं, श्योर नहीं। पुराना है ये वाला। ये मठ 11वीं शताब्दी में इसका नींव रखा गया था। जब तिब्बत में पहले 7वीं 8वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी तक बुद्धिज़्म थोड़ा जैसा आ चुका था, फिर बाद में थोड़ा वीक हो गया, तो तिब्बत के एक राजा ने भेजे इंडिया कि जो इंडिया का जो नॉलेज है उसको तिब्बत में लाने के लिए। तो तब तक्षशिला, विक्रमशिला, जो अभी तक्षशिला या विक्रमशिला एक तो पाकिस्तान में है, नालंदा यूनिवर्सिटी 11वीं शताब्दी के मिड में जला दिया गया था। तो कुछ था नहीं, तो उन्हें एक नालंदा के जो मास्टर मिले, जो उसका संबंध था वेस्ट बंगाल से। अतिशय दीपंकर श्री ज्ञान बोलते हैं उनका नाम। उनको रिक्वेस्ट किया कि आप तिब्बत में आके इस ज्ञान को दोबारा से शुरू करें, शुरू में और प्रॉपर तरीके से दे। वो जो यूनिवर्सिटी तो खत्म कर दी थी, उसमें उसका जो टीचर था उसको इधर लाया गया, बच्चों को दोबारा शुरू से एजुकेशन दे बुद्धिस्ट की। वो टीचर है, वो अतिशय दीपंकर ज्ञान बोलते हैं उनको, बंगाल से है वो। तो पहले तो उन्होंने 2-3 बार मना किया, फिर बाद में वो तिब्बत गए, फिर अपना पूरा लाइफ भी तिब्बत में त्याग दिया। फिर दोबारा उन्होंने बुद्धिज़्म को तिब्बत में अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग किया। तो इस मिनिस्ट्री पर मंगोल के हमले भी हुए हैं ना कुछ? उस टाइम उनके बहुत शिष्य हुए तिब्बत में। उनमें से एक बहुत तेज तर्रार शिष्य था, उसका नाम वो बोलते हैं ड्रोमतंबा तिब्बतन नेम है। ड्रोमतंबा ने इस मोनेस्ट्री का नींव रखा 11वीं शताब्दी में। अभी आप ठहरे ना रंगरिक गांव के निकट में वो जगह है, वहाँ पे 11वीं शताब्दी में, जहाँ पे वो एक केव्स बनी हुई है शायद, एक तो वो है उसके निकट ही है, वो तो नहीं है। फिर 13वीं शताब्दी में मंगोल अटैक के बाद डिस्ट्रॉय हो गए उधर। फिर यहाँ दोबारा रिबिल्ड किया। और अपना लद्दाख का एक मास्टर थे, उन्होंने इधर इस मोनेस्ट्री को दोबारा रिबिल्ड इधर किया। वो करके अभी 640-45 साल हो रहे। जहाँ पे आप दोनों छाए भी है, नीचे मेडिटेशन कैंप है, वो 640-45 इस मिनिस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय किया था ना मंगोल लोगों ने। वो मैंने बोला ना, उसने किया उसको वहाँ पे जो रंगरी के पास। हाँ, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। फिर यहाँ पे आके भी यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक भी हुए हैं, 3-4 बार भूकंप भी झेले हैं। तो ये लामा शब्द तो मंगोल का नहीं है? मंगोल का है। लामा मंगोलों में बोलते हैं ना। लामा शब्द ये सबसे पहले मंगोल से आया है। किन को दिया गया था? तिब्बतन जो गुरु ना अभी दलाई लामा जी, उनको मंगोल ने दिया था। क्योंकि तिब्बत को एक पहले तो बटा जैसा था, अलग अलग एरिया में अपना छोटे छोटे राजा वगैरह। मंगोल ने तिब्बत को एकजुट करके दलाई लामा जी को सौंपा, 5वें दलाई लामा जी को। अभी उनका 14वां रिकनेक्शन है। और तो 5वां दलाई लामा जी, जब पहले उनका नाम दलाई लामा नहीं था, पहले अलग नाम थे। 5वां जब उनका रिकनेक्शन हुआ, वहाँ से दलाई लामा का नाम, मतलब 5वें गुरु को दलाई लामा कहने लगे, उससे पहले वाले को अलग अलग नाम थे। अलग नाम थे। उसके बाद दलाई लामा का अभी तक दलाई लामा ही चल रहा है। दलाई लामा का आपको एक पदवी दे दी उन्होंने, दलाई लामा जी की। उन पे पहले वो लामा ही थे, तो
मंगोल ने तिब्बत को एक करके तिब्बत को दलाई लामा जी को सौंपा, क्योंकि अब ये जो नॉलेज तिब्बत में था, जो अभी बुद्ध जी को बुद्ध विहार में मिला था, वो नॉलेज अब तिब्बत में मंगोल को भी अच्छा लगा, इसको बचाए रखना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड पीस के लिए, सबके लिए ये नॉलेज बहुत अच्छा, इस नॉलेज का बचना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने गुरु दलाई लामा गुरु जी को राजा भी बनाया और तिब्बत पूरा उनको सौंपा। उससे पांचवें दलाई, फिर नाम भी दिया दलाई लामा। दलाई लामा नहीं था पहले, ये बाद में थोड़ा जैसे नाम चेंज हो गया, तलाई लामा बोलते हैं। तलाई तय से बोलते हैं। तलाई लामा मंगोल शब्द है। मंगोल तलाई मीन्स ज्ञान का सागर, जो गुरु जी के पास था, ज्ञान का सागर। तलाई लामा मीन्स गुरु, वो नाम मंगोल ने दिया। उसके बाद ये लामा शब्द तिब्बत में ऐसा चला। वो भी करते हैं। बुद्धिज्म में दो है, एक होते हैं तंत्र और सूत्र। हाँ जी। ज़्यादातर इधर सूत्र में फोकस किया जाता है, बच्चों को जो नॉलेज देते हैं ना। तंत्र, जब सूत्र का पूरा जो नॉलेज हम पा लेते हैं, उसके बाद हम तंत्र में जाते। तंत्र बहुत डीप है, इतना आसानी से आप समझ भी नहीं हाँ, वो तो बहुत हाईएस्ट स्टेप है। हम लोग काफी समय के बाद आप तंत्र उस विद्या में जाते हैं। हाँ, तो उसमें जाए, वो बहुत डीप भी है और बहुत वो भी है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, और एक तरह का वो थोड़ा ऐसे कह सकते हैं, सीक्रेट भी है थोड़ा। हाँ, वो काफी मैच्योर है, मतलब बच्चे लोग नहीं कर पाते उसको। नहीं कर पाते। अगर उस पहले गुरु जी से शिक्षा लेना होता उसके लिए, फिर खुद को टीचर ढूंढ के पढ़ाई उसके बारे में पढ़ना होता है, उसके बाद प्रैक्टिस में जब इधर लामा जी बन के बच्चे आ जाते हैं, मतलब 8, 10, 12, 13 साल में आ जाते हैं, कोई 15 साल में आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद जितना टाइम इधर रहते हैं, जैसे अभी आप हैं, तो आप भी पढ़ते रहते हैं अभी? हाँ, पढ़ाई तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। आपका बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ते रहते हैं आप? पहले पढ़ो, मैंने भी 25 साल कोर्स किया है उसमें, सूत्र में। तंत्र में मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया है। अभी भी मेरे को तो कुछ इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिला है। अभी तो हम पहले पायदान में ही है, अभी बहुत लंबा है सफर। जो लड़कियां नन बनती है उसको नन बोलते हैं ना? नन बोलते हैं, चोमो बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उसका भी सेम ही प्रोसेस होता है, ऐसा ही? सेम। ओ सफर। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। जैसे मिलवा जैसे अबे सफर नहीं चलना क्या? वो न्यूज़ शेयर कर। अबे काम नहीं ना, ना बोल 좀 सफर रहो, 찾아 क्या 주는? वो ये 관련 न्यूज़ शेयर कर। जो लड़कियां नन बनती है उसका भी सेम प्रोसेस होता है? सेम नॉलेज, सेम प्रोसेस। तो आपका वैसे अलग है, लड़कियों का अलग रहने का और लड़कियों का? यहाँ पे सिर्फ मंग्स ही रहेंगे। लड़कियों का अभी काचा के नकेट भी है, यहाँ हमारा रंग क्या बोलते हैं, मुरंग बोलते हैं, उधर भी है, पंगमो बोलते हैं, उधर भी है। उनका अलग रहता है मोनास्ट्री। वो काजा वाला नॉलेज सेम है। सेम। तो लड़कियां इस मिनिस्ट्री में आ तो सकती होगी? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ाई करके अपना जो सन्यासी बन के यहाँ बैठते हैं ना, ऐसा नहीं बैठ सकते। तो लड़कियां अपने जो यहाँ पे लड़की रुकती है उसको क्या बोलते हैं? कहाँ? जैसे ये तो मिनिस्ट्री है, इसको हम जहाँ मिनिस्ट्री जो कौंपा बोलते हैं, उसको नन्नी बोलते हैं। वहाँ पे तो रुक सकती होगी लड़कियाँ? लड़कियाँ शायद 1, 2, 3 के लिए रुक सकते हैं। पक्का? जैसे आप पक्का रुकते 3 साल की, आपका जब भी आपकी ड्यूटी लगी है 3 साल के लिए, लड़कियों को भी ऐसे लगती है? उनका भी ऐसा ही होगा, मेरे को पता नहीं। आपको पता नहीं? तो लड़की भी अगर जो नन बनेगी तो वो भी शादी नहीं करवाएगी? शादी नहीं कर सकती। अच्छा, शादी करना होगा तो छोड़ना होगा फिर। तो आप लोग वो हैं भगवान को, मतलब खुदा को कैसे मानते हैं? नास्तिक हैं आप, जहाँ आज तक ये बुद्धिस्ट आपका? ना नास्तिक है ना आस्तिक है, वास्तविक में है। जैसे बुद्ध का एक है ना वो, कि आप कर्म कीजिए, कर्म से जो मिलेगा वही आपको मिलेगा। वही बुद्ध जी ने खुद कहा है। पहले मैंने तो इस रास्ते पे जाके मेरे को ऐसा ज्ञान मिला है। अगर आप लोग आना चाहता हो तो मैं रास्ता दिखा के जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे ये रास्ता अच्छा है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आंख मूंद के, बुद्ध जी ने बोला है करके इसमें आंख मूंद के मत आओ, कोई फायदा नहीं इसमें। अपना दीपक खुद बनने का जो है खुद में है, कोई बाहर से आपका कोई मदद नहीं कर सकता। जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को कुछ ज्ञान हुआ है, तो आपको कैसे फील होता है उस टाइम? वो तो फील हो ही जाता है। हो जाता है। अभी तो हमें वो वहाँ
वहाँ उस स्टेज तक नहीं पहुँचा है ना, जब पहुँचेगा तो आपको फील हो ही जाएगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरा अभी 41। 41 है आप, तो आपको कितने साल हो गए इधर? 32। 32 ईयर आप इधर ही हैं उस समय। तो जब आप मॉन्क बन जाते हैं उसके बाद अपनी फैमिली को, मम्मा पापा को मिल सकते हैं क्यों आप? नहीं, ठीक है, उसकी कोई रोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं, घर आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यहीं पे बैठते हैं क्योंकि यहीं पे हमें शांति और वो लगता है कंफर्टेबल, अपना प्रैक्टिस करने में कोई डिस्ट। आप एक ग्राम ले ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਮਗਰਲੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੌਂਕ ਥੱਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 15-20 ਮੌਂਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਗਰ ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ 60-70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੋਕ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਅਰਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਦੇਸੀ ਘਰੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੰਗਲੀ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਆ, ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਿਲਕਣ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ, ਸਿਆਲ, ਪਤਝੜ ਤੇ ਬਸੰਤ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਸੰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। 4 ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਢਲਾਣ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 60% ਬਰਫ਼ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 40% ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਘੱਟ ਪਈ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਰਫ਼ ਘੱਟ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਸਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਐਂਦ ਕੀ ਇਹ ਉਦਾਸ ਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਪਈ ਆ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁੱਕੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 27-28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27-28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਪਊਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 70-80% ਮੀਂਹ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ 90% ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 90% ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 90% ਚਾਂਸ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੂਗਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੌਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੌਦ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜੂਗੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੇਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿਚਾਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ 이미 자고하라 레스토랑에 아주 사람 너무 좀 봐. 아, आप अकेले है? हाँ मेरा दोस्त एक साथ मेरे 2 आदमी हैं अब दो हाँ ये यहाँ नीचे है ना हाँ ये पीला जैसा ठीक है निकल जाना ठीक है ओके थैंक यू ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕੀ ਵੱਜਿਆ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਦੇ अच्छा